Yes, Manjari. Hello, good morning, all. As we all know, Ignited Mind by PHF is celebrating Women's Week under guidance and mentorship of Dr. Liaquat Namole sir. Today is in this series we have one more dynamic personality, Dr. Padma Shri Vishwanath Shinde madam, from Mohol district, Solapur. She has completed DHMS from Gandhinatha Homeopathic Medical College, Solapur. Earlier, she was practicing allopathic gynecologist and obstetrics. But after meeting with Dr. Liaquat sir and attending his seminars, monthly seminars, now she has started practicing homeopathy by mind method since 8 to 9 years. She is known as kidney stone specialist in her area. She has started YouTube channel for common people, and she will inform you the name of YouTube channel. So with the round of applause, please welcome our beloved Dr. Padma Shri madam. Ma'am, over to you. Welcome, Padma. Thank you. Thank you, Manjari. Thank you, Priyanka and Mansi. Good morning. Good morning, sir. And good morning, all the participants. Starting with though every day is the Women's Day, congratulations to all and good wishes for the Women's Day to everyone. Today we are celebrating the Women's Week. So we are going to see the cases of the ladies who are in the 40 and 50 years of the age. First of all, I would like to say gratitude to Liaquat sir for teaching us the mind method so in easily way and helping us in settling the practice also. Thank you very much, sir. Can I proceed, Mansi? Yes. Yeah. Today we are going to see the 4 cases. Cases in means short versions of that series. They all are in the 50 to 60 age of the age. Screen share karte. First, we are going to see the case 1. As nowadays, ladies in the 40 and 50, they are suffering mainly because there is sudden change in their life due to the generation gap. Because पहले उन्होंने जो डोमिनेशन में उनकी जिंदगी कटी है और अभी जो जनरेशन है नेक्स्ट उनके जो बहू है वो फुल ऑफ फ्रीडम है और विथ करियर ओरिएंटेड है. They have to manage both the things. And now it is the era of 1 or 2 children. So they worry more about the children. पहले कैसा रहता था कि बच्चे ज्यादा होते थे तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी. एक नहीं तो दूसरा हैंडल कर लेता था एक दूसरे को. बट अभी क्या हो रहा है कि एक तो चिल्ड्रंस बहुत कम होते हैं तो पैम्परिंग भी बहुत ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं तो उनको हैंडल करना भी मुश्किल हो जाता है. फर्स्ट वन दिसते है का? हाँ, ग्रेटिट्यूड टू सैमुअल हैलीमैन जिनकी वजह से आप हम सभी यहाँ पे है और जिन्होंने इतना अच्छा साइंस दिया है हमें वर्ल्ड को. It is the case first. It is a case of a lady, 55 years, complaining of all joint pains, especially the neck pain. Her husband is a contractor and he used to stay in the other cities on and off. And he has only one son who is doing business in a grocery shop and daughter-in-law and 2 granddaughters. जो ये पेशेंट आई थी मेरे पास उसके बहू को साथ में लेके आई थी तो उसका कंसर्न एक ही था कि वो जो है लेडी हस्बैंड जॉब बिजनेस की वजह से हमेशा बाहर रहते थे तो इसको ही सब कुछ संभालना पड़ता था
ये लेडी सब कुछ संभालती थी, इसके मायके का घर भी और यहाँ का भी सब कुछ। उसका कंसर्न था कि लड़का रोज दारू पीता है और सन इज अल्कोहलिक, झगड़ा करता है, शॉप पे नहीं जाता, दोस्तों के साथ घूमता रहता है, कितना भी समझाओ तो सुनता नहीं। क्या करूं, कभी कभी झाड़ू से मार भी देती हूँ। शी टोल्ड इट फ्रैंकली। मैं कितना अदब से रहने वाली पहले, मेरी मेरे भाई और मेरे बहन और उनके बच्चे सब मेरी सुनते हैं, लेकिन मेरा ही लड़का ऐसा निकला। ये उसका अफसोस था। दिस इज द मेन वर्जन। समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. या वी प्रोसीड टू द सेकंड केस। आफ्टर completing the four cases we will discuss. Yeah. Second case is a case of a lady, 58 years old. Now he is working in the hospital since 1 year. ये लड़की जो थी, लेडी जो थी, पहले घर में रहती थी, अभी 1 साल पहले से रिसेंटली उसने पहली बार जॉब करना चालू किया है इस एज में। इसकी कंप्लेंट थी ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी विथ अर्टिकेरियल रैश, बोथ नी जॉइंट पेन, दोनों थे उसको। उसकी फैमिली हिस्ट्री में 2 daughters and only 1 son, and husband now because of the age factor he is not working and grandchildren are there. उसका वर्जन और कंसर्न ये था कि उसका जो लड़का है बहुत पैसे उड़ाता है, हर किसी से कर्जा लेता है। उसका जो लड़का है बहुत सारा कर्जा लेके उसको रोज उसके घर पे लोग आते हैं पैसे लेने के लिए। और उसके बाद बहू जो है वो भी कुछ सुनती नहीं है, काम पे जा बोले तो जाती नहीं। ये बोलती है कि बहू को तू काम पे जा, घर पे बैठी रहती है, उल्टा मुझे ही बोलती है तुमने लड़के को कुछ सिखाया नहीं। मैं इसलिए मैं अलग रहती हूँ। और ये जो लेडी है अभी एट द एज ऑफ 50 years वो अलग रहती है हस्बैंड को लेके। लड़के का कर्जा मैंने चुकाया, अभी उसने काम करके उसका लड़के का जो कर्जा है वो चुकाया, फिर मुझसे ही झगड़ती है, बहुत गुस्सा आता है बहू पे। एंड एट द सेम टाइम ही शी आस्क्ड मी आल्सो, आप ही बोलो मैडम मैंने क्या लड़कियों को अलग से सिखाया है, कितने अच्छे रहते हैं। उसको जो लड़कियां है ना उसके बारे में बहुत प्राउड फीलिंग है उसे, कितने अच्छे रहते हैं मेरी बेटियां। दामाद भी बहुत अच्छे हैं, मुझे पैसे भेजते हैं, कपड़े भेजते हैं, फिर भी मैं काम पे जाती हूँ, मेरे पास भी बहुत सोना है। दिस इज द वर्जन। समझ में आया? हेलो। इसका मेन कंसर्न ये था कि जो बहू है, पैसे लड़का तो कुछ सुनता नहीं है, पैसे उड़ाता है और कर्जा करता है, तो बहू ने अभी काम करना चाहिए, उसे ऐसा लगता है। और उल्टा बहू ही उसको गुस्सा करती है तो इसे बहुत गुस्सा आता है, उल्टा बोल देती है। प्रोसीड टू द थर्ड केस। मानसी। Third case, it is the case of the lady 65 years old. She is marketing the homemade pickles and papad. And she is also having the complaints of both knee joint pains. Recently, इसके husband गए, history of death of husband before 6 months, and one son having gold shop. उनका gold का shop है, अभी जो son है वही देखता है उसे, and daughter-in-law who is teaching in a private school, and grandchildren. But she is doing this marketing since 4-5 years. उसका कंसर्न ऐसा था, ये जो पेशेंट है इसका जो लड़का है उसने मुझे पहले कंसल्ट किया था फॉर sciatica पेन। बिकॉज ऑफ sciatica वो जो लड़का है वो बेड रिडन था, ही इज नॉट एबल टू वॉक, एंड उनका शॉप जो है लिटरली 1 month तक बंद था। तो मैंने ऑनलाइन कंसल्ट करके उनको मेडिसिन दिया तो उसे अच्छा लगा, अभी लड़का अच्छी तरह से घूमता है, तो उसको लगा कि मुझे भी दिखाना चाहिए। उसका कंसर्न इज, हस्बैंड थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, वैसे मैं पहले से ही अचार बनाती हूँ, पर लड़का बहुत भोला है, बिजनेस अभी अच्छा नहीं है, और लड़के को sciatica का प्रॉब्लम आपकी दवा से अच्छा हुआ, वरना कितने दिन दुकान बंद करने पड़ते थे। बस उसका ही टेंशन रहता है, खुद पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ, बहुत दिन भर बाहर रहती है, लड़के को चलना नहीं होता तो दिन भर उसको देखना पड़ता है। सोचा आपसे दवा ले लूं, मेरा घर आना
उसके बाद में उसने मुझे कहा कि मेरे घर आना, कुछ अच्छा सा बना के आपको मैं खिलाऊंगी। हेलो। उसका Yes, yes. कंसर्न ये था कि, या उसका कंसर्न ये था कि उसकी जो बहू है वो प्राइवेट स्कूल में टीचर है, इसके लिए वो प्राइवेट कोचिंग्स भी लेती है, 3 बार बाहर ही रहती है। सुबह जो 9 बजे जाती है तो रात को 8 बजे ही घर पे आती है, इसका वो था। तो घर पे ऑब्वियसली। हेलो। Hello. या case number 4, it is a case of a lady, 46 years, complaining of hypothyroidism, swelling all over the body, joint pains and giddiness. इसको चक्कर आती है, पूरा बॉडी स्वेलिंग है, और हाइपोथायराइडिज्म है, उसको थायराइड की गोली चालू है। फैमिली हिस्ट्री में हस्बैंड है जो बिजनेस करते हैं, एक सन है, एक डॉटर है, हु वाज मैरिड बट हैविंग द कोर्ट केस ऑफ डिवोर्स नाउ। उस पेशेंट का वर्जन ए था, इसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बिजनेस में, वो घाटा होने की वजह से उसने जल्दी से लड़की की शादी कर दी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन। पर लड़के वाले बहुत खराब निकले, तो साल भर में ही बच्चा भी हुआ उसको, लड़की को। पर लड़की को परेशान करते थे जो लड़के वाले थे, कहीं घूमने फिरने नहीं देते थे, और दामाद जो है वो उसकी लड़की पे हमेशा शक लेता था। तो लड़की अभी, उसने क्या किया, लड़की को अपने घर पे लेके आई डिलीवरी को, तो उसने भेजा ही नहीं वापस उसको। और लड़की अभी जॉब पे जाती है, पैसे कमाती है। और जो बच्चा है उसका, लड़की का, उसको वो उन्होंने क्या किया कि उसको कितने दिन हमारे घर पे रखते, भेज दिया उसको उसके घर, मीन्स लड़की के ससुराल को। उसने वो बच्चा जो अभी 1.5 years का था, उसको वहां पे उसने उन लोगों ने भेज दिया। अभी उसके नसीब में जो होगा वो सो होगा, उसका कंसर्न ऐसा ही था। और ऊपर से उसने मुझे ये बोला कि वैसे मेरी थायराइड की गोली चालू है, जॉइंट के लिए देखो आप क्या दे सकते हैं, दे दो। ऐसा उसका वर्जन था। These are the 4 cases we have to discuss now. सब जगह पे कंसर्न हर एक का, एक तो लड़का कुछ काम करता नहीं है, या फिर लड़की का कुछ तो प्रॉब्लम है। फर्स्ट लेडी आपको कैसी लगी बताओ। हेलो। Yes. फॉर विच केस मैम? नाट्रमस, वंदना मैम? वी आर डिस्कसिंग नाउ मैम द डल फर्स्ट। का मारा। डल का मारा क्यों मैम? वो गुस्से में बच्चे को झाड़ू से भी मारती है, ऐसा उसने कहा ना मैम। हाँ, तो उसके वॉयलेंट एंगर को देख के मैंने सोचा। उसको तकलीफ भी होती है, गुस्सा भी आता है तो मार देती है। डल का मारा डल हो जाता है ना, मारेगा वायलेंट होके। ओके मैम। इसकी कंडीशन सोचो आप, वो जो पहले कैसी थी, अकेले सब कुछ करती थी ना। और इतना ही नहीं, यहाँ पे नहीं, अपने मायके में भी वो सब उसके ही अंडर था। सब सब उसको उतना रेस्पेक्ट देते थे, सब उसकी बात सुनते थे। हाँ, यही उसका कंसर्न है मैम कि बाकी सब सुनते थे पर मेरा खुद का बच्चा मेरा सुन नहीं रहा है। सुन नहीं रहा है, या अभी वो लड़का जो दारू पीता है, उसकी वजह से उसको शर्मिंदगी होती है अभी। दिस इज कॉमन द सिनेरियो वी सी nowadays. और कोई कुछ बोलेगा?
हेलो। मैम एन एन भी तो है भरपूर में। हेलो सर, आपका एन आवाज भी है कट हो ना रहा भरपूर। आवाज कट हो रही है सर, समझ में नहीं आ रहा। हेलो। हेलो, कैन यू रिपीट? हाँ, एक बार रिपीट कर दो पद्म। केस रिपीट करो। हाँ, केस। ये 55 ईयर्स की लेडी है, उसकी बहू को साथ में लेके आई थी। उसका जो टेंशन वो मेरे पास पहले इसके लिए आई थी कि उसके लड़के को जो अल्कोहलिक एडिक्शन हो गया है, उसको डी एडिक्शन के लिए मेडिसिन लेने के लिए आई थी मेरे पास। उस साथ में ही उसने खुद को भी मुझे दिखाया। उसका मेन कंसर्न ये था कि लड़का जो है रोज दारू पीता है, काम पे नहीं जाता, रोज शॉप पे नहीं जाता, शॉप खोल के नहीं बैठता, और उल्टा बोलता है उसको। और कितना भी समझाए तो समझता नहीं है। तो उसको गुस्सा आता है, उससे भी कभी कभी वो उसको मार भी देती है झाड़ू से। उसका बच्चा जो है अभी कितना, 25 28 एज का है, उसको भी वो मार देती है। इतना गुस्सा आता है उसको। क्यों आता है? हेलो, सबसे एक रिक्वेस्ट है। एक लाइन में आप चैट मत एनालिसिस करो। मत कीजिए। हाँ, नहीं, चैट करने का ये नहीं है, लेकिन एनालिसिस पूरा करो, पूरी केस का एनालिसिस करो। एक वर्ड पे, एक लाइन पे एनालिसिस मत लिखिए। तो थोड़ा सा सीखने को भी मिलेगा अगर आप एनालिसिस पूरा करते। केस का एनालिसिस करना है ना, एक एक हाँ, लाइन वी का नहीं ऑल्सो करना नोट है। यस। डिफरेंट व्यूज। एक साथ ही बोलो, जो भी आपका एनालिसिस है पूरा केस का एनालिसिस करके एक साथ बोलिए, एक एक रुब्रिक मत बोलिए। क्यों लगता है मेडिसिन आप, सेकंड, खाली मेडिसिन के नाम मत लिखिए। क्यों वो मेडिसिन आपको लगता है वो भी बताइए। अपर्णा मैम, पल्सर क्यों लगा आपको? मैम वो ये वर्जन है ना पेशेंट की कि वो मेरा नहीं सुनता, बाकी सबका सुनता हम्म। है। उसे हम्म। मेरा तो सुनना चाहिए। बाकी तो सबका ये सुनता, वर्जन में ऐसा नहीं बोला उसने। नहीं नहीं, उस बाकी नहीं, सब मेरा बाकी सब सुनते मेरे हैं। सुनते हैं। हाँ, हाँ, मेरा या लड़का ही मेरा नहीं सुनता। या तो हाँ, इस वर्जन से मुझे लगा। क्या लगा आपको इस वजह से, आपको क्या फील आया? मैं एक्सप्लेन और नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। ओके। थैंक यू। ओके। या अभी सेकंड केस डिस्कस करें? किसी ने वैनिला बोला है, क्यों वैनिला लग रहा है आपको? जी। मॉर्निंग मैम। या गुड मॉर्निंग। मैम ये थोड़ा हेल्पलेसनेस फीलिंग और नथिंग ही कुड डू नथिंग वाला फील लगा। और जो ना हम्म। समाज में शर्मिंदगी हो जाती है, तो हम्म। वो एम्बेरसमेंट और सेंसिटिव टू द ओपिनियन लगा। और ये मार भी सकती है, इतना वॉयलेंट एंगर है, तो ये वेनिला करती है ऐसा। तो आई थिंक ये वेनिला का फील मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। और चिल्ड्रन के लिए तो उसको कंसर्न ज़्यादा है, तो एंग्जाइटी चिल्ड्रन भी लगा क्योंकि लेने आई है उस हिसाब से। ओके। मैम, ऑल या फोर केसेस में ये लेडी अपने बच्चों की फ्यूचर को लेकर कंसर्न है, उसके लिए एंशियस है, जो ये वैनिला हम्म। होती है। ओके। कॉकुलस क्यों नहीं लगी फिर आपको? कॉक्यूलस
केयर लेने वाली है, ये फ्यूचर उनका लेके कंसर्न। ओके, केस वन समझ में आया? या कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल हु सेड वेनिला। मैंने इसको वेनिला ही दिया था, लेकिन मैंने जो रूब्रिक्स लिए थे ना, उसका जो एक कंसर्न था कि मैं पहले कैसे रहती थी अदब से, अभी इसने मुझे शर्मिंदगी तो है उसको, वो फॉर्चून मेरी ऐसी कैसी नसीब हो गया ना उसको, वो उसके बिहाइंड फीलिंग ये था कि एलिमेंट्स फ्रॉम फॉर्चून रिवर्सल एंड एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ओवर लव्ड वन। तो मैंने उसको वेनिला ही दिया था। नाउ गोइंग टू केस नंबर 2। मानसी, केस नंबर 2। अभी केस नंबर 2 के बारे में बोले। इसका जो लड़का है ये बहुत कर्जा करके बैठा है, और ये लेडी उस कर्जे को चुकाने के लिए इस एज में जॉब पे जा रही है, एट द एज ऑफ 58 ईयर्स। और इसके दो लड़कियां हैं जो बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमिकली सेटल्ड है। और इसे लगता है कि उसकी बहू ने अभी काम करना चाहिए। हेलो। यस पर्सन। या इसको भी बहुत गुस्सा आता है। तो वो जब आई थी तो होल बॉडी आर्टिकेरियल रैश इतना था, रेडनेस और पैचेस बहुत बड़े बड़े थे। एंड एट द एज ऑफ 50 ईयर्स शी इज स्टेइंग अवे with husband and doing all the house chores and earning the money. उसका हस्बैंड जो है ज्यादा कुछ करता नहीं, उसको अस्थमा है, काम पे भी नहीं जाता और घर पे भी ज्यादा कुछ काम करता नहीं। पर उसे सोने का बहुत शौक है। इवन वो जब आती है तो मुझे भी कुछ नया दिखा तो पूछती है। चैट में देखो किसी ने कुछ लिखा है। नेहा पवार। इंडिपेंडेंट यस। डिलीजियल सल्फर। या और गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस मैम। यहाँ पे मैम जैसे मुझे ना यहाँ पे एंजाइटी अबाउट चिल्ड्रन ये लगा कि बच्चे को बारे में वो सोच रही है, और इस एज में भी वो काम करके बच्चों का कर्जा उतार रही है। तो आई विल आल्सो टेक द इंडिपेंडेंट रूब्रिक। एंड सेकंड थर्ड थिंग कि वो बोल रही है कि मेरे पास सोना भी है, मतलब वो अपनी वेल्थ भी दिखा रही है, मैं काम करती हूँ लेकिन मेरे पास सोना भी है, तो डिलीजन वेल्थ भी मिलेंगी। तो आई विल आल्सो गो फॉर सल्फर मैम यहाँ पे। ओके। और हाँ, ये सिंपल केस है, वर्जन से ले दो। इस केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा कि एक लेडी खुद तो इंडिपेंडेंट है ही, पर वो चाहती है कि उसकी बहू भी इंडिपेंडेंट बन के घर संभाले, काम करे।
उसका इस बात को ज्यादा अफसोस नहीं कि उसका लड़का कुछ काम करता नहीं, कर्जा करके रहता है। बच्चे को वो अभी भी पैम्पर ही कर रही है। ये क्या है? हेलो। ये कुछ स्ट्राइकिंग नहीं लगा आप लोग, आप सभी को? नॉर्मली जो माँ है उसको बच्चे को डांटना चाहिए ना, जो अभी हमने फर्स्ट केस में देखा। वो क्या करती है, अपने बच्चे को मारती भी है, गुस्सा भी करती है और मारती भी है। और इस केस में ये लेडी क्या कर रही है, बहू को डांट रही है, बहू पे गुस्सा हो रही है। ये ऐसा क्यों कर रही है? हेलो। या ये सल्फरी है, क्योंकि ये हिपोक्रेट है। हिपोक्रेसी की वजह से वो ऐसा कर रही है। वो बच्चे, खुद के बच्चे को नहीं डांटेगी वो, और उसे ऐसा लगता है कि उसके बहू ने ही उसको संभल के लेना चाहिए। तो कांग्रेस जिन लोगों ने सल्फर कहा, ये उसका नया वर्ड। हेलो, समझ में आया? हेलो। यस मैम। या तो अभी हम केस नंबर 3 पे जाएंगे। केस नंबर 3 में 65 इयर्स की लेडी है, वो जो अचार और पापड़ बना के बेचती है घर पे। इसका जो कंडीशन था ना, गोल्ड का उनका शॉप था। उसका हस्बैंड जो है ना, अभी बिफोर 6 मंथ्स डेथ हो गई उनकी। मैडम, तो मैम या मेरा जो जो सेकंड केस है ना, उसमें हाँ, क्योंकि जो माँ होती है ना वो मुंह में अंधी भी होती है। जैसे होता है ना, वो तो वन साइडेड है, अपने बेटे का पक्ष कर रही है वो यहाँ भी। जहाँ उसको समझाना चाहिए वहां भी पक्ष कर रही है। या तो ये हिपोक्रेसी की जगह कुछ और नहीं ले सकते क्या? क्योंकि वो मुंह में अंधी है। उसको लग रहा, यहाँ उसको समझाना है, वो एक्शन ही ले रही ना उसके प्रति। तो इसको, वो बच्चे के प्रति कहीं ना कहीं अफेक्शन शो कर रही है, ऐसे अफेक्शनेट नहीं ले सकते? सक्सिनेटिंग, अफेक्शनेट। अफेक्शनेट। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट टुवर्ड्स द नॉर्मल है ना सर, अफेक्शनेट होती तो अफेक्शनेट बहू के लिए भी उसको होना फिक्र चाहिए होती। ना। हाँ जी। फिकर हो तो बहू के लिए भी होना चाहिए था, अगर नहीं अफेक्शनेट नहीं, होती तो। बहू के लिए नहीं है। जो माँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहू के प्रति, बहू तो एक अननोन होगी, उसके लिए थर्ड पर्सन होगी ना। जो माँ अपने बेटे के मुंह में उसका पक्ष ले रही है, नहीं, बहू जबकि उसकी, जो बच्चे हो गए उसको, बहू के अभी शादी होके 8-10 साल हो गए, तो अननोन कैसी हो गई, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अननोन इसलिए सेकेंड होगी थिंग, ना। अननोन का मतलब कि उसको डांट रहा हो तो बेटे को चाहिए, लेकिन वो उसको डांट नहीं रही है। हाँ ना, वही तो हिपोक्रेसी है ना। वो अपना है, जो अपना और दूजा अपन करे ना, दिखाती है ऐसे कि सब इसको मोह नहीं बहू हमें बोलेंगे? सब कुछ कर। मोह नहीं बोलेंगे इसको? मोह, मोह। पद्मा, मैं बोलूं? हाँ, बोल। सर देखिए, अफेक्शनेट का मतलब क्या है? ये मॉर्बिड रूब्रिक है ना, मतलब रूब्रिक है तो मॉर्बिडिटी है। तो हम्म। अफेक्शनेट बंदा जो होता है वो हर किसी के प्रति अफेक्शनेट होता है, उसके लिए बेटा और बहू में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। आया समझ में? क्योंकि सबको, मतलब बेटी है, दामाद है, फिर बेटा है, बहू है, बच्चे हैं उनके, मतलब उसके नाती पोती है, तो वो सबके लिए, उसके नेबर है, उसके रिलेटिव्स है, वो सबके लिए अफेक्शनेट होगी। जो लेडी अफेक्शनेट है, जो भी बंदा कोई भी है अफेक्शनेट, तो वो सबके लिए अफेक्शनेट होगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए अफेक्शनेट है और इसके लिए ये है। यही तो हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी का हाँ, मतलब हिंदी में होता है कि दाम्भिक।
मतलब जो हाँ दिखाते अलग जल्दी है खाना अलग है, जल्दी दिखाते और अलग है जो और रहते अलग। असल में चीज है वो अलग है। मतलब असल में उसको खाली बेटे के लिए प्यार है और वो दिखाती सबको है कि मेरी बहू भी कितनी अच्छी है, मैं बहू को काम करने के लिए बोल रही हूँ। ये घर की अंदर की बात है। और वो बाहर नहीं दिखाएगी कि मैं बहू के साथ कैसे बिहेव कर रही हूँ, वो तो दिखाएगी कि मैं सबके साथ अच्छा बिहेव कर रही हूँ। हाँ, यही उसका मतलब वो दाम्भिकता है, और इसीलिए उल्टा बोलती है हिपोक्रेसी। कि अभी इस साल में, इस एज में मैं काम करती हूँ और पैसे कमा के दे रही हूँ उसे, वो की भी मैं चिंता ही करती हूँ। ये दिखाती है, लेकिन इन द रियल सेंस शी इज मोर वरीड अबाउट हर सन, नॉट द डॉटर इन लॉ। अलग अलग हो गए ना उसका एक्शन। हाँ ठीक है मैम। इफ यू केयर फॉर समवन, यू हैव टू केयर फॉर एवरीवन। केयरिंग रुब्रिक लगा लोगे आप तो सभी, सबके लिए एक साथ ही होगा। मेरा कहने का मतलब इफेक्शन टू वर्ड्स साइड हिज सन है, यहाँ जो इफेक्शन है टू वर्ड्स हिज सन है। ऐसा रुब्रिक तो है नहीं ना दैट मेरा इज पति नॉर्मल ना में। सर। नहीं, एक बच्चे के लिए अफेक्शन होना एक माँ के लिए ये नॉर्मल रुब्रिक है। वी हैव टू कैच द मॉर्बिड और एबनॉर्मल थिंग्स। उसके ऊपर ही हमें रुब्रिक निकालनी है और उसके ऊपर ही हमें रेमेडी देनी है। थैंक यू मैम। समझ में आया? ओके, हाँ जी हाँ थैंक जी। यू। केस नंबर 3 वी आर डिस्कसिंग नाउ। इट इज केस ऑफ 65 इयर्स लेडी। ये जो लेडी है ना, ये भी पहले से ही मार्केटिंग करती है घर में। उसका हस्बैंड की जो डेथ हो गई है बिफोर 6 मंथ, और इसका जो लड़का है उसको अकेला ही लड़का है, और जो फादर का शॉप है वही वो अभी चला रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया है, बिजनेस में उतना अच्छा नहीं चल रहा है बिजनेस, और उसकी वजह से उसको, लड़के को भी राइट साइड साइटिका का प्रॉब्लम था। तो वो 1 महीने से घर पे ही सो के था। तो उन्हें मुझे कंसल्ट किया, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद में उसका वो अच्छा होगा। अभी वो चल फिर रहा है, पहले वो चलने को भी नहीं आता था, उसको उतना दर्द था। तो उसका रिजल्ट देख के ये लेडी ने मुझे कॉल पे कांटेक्ट किया था। तो इसका क्या है ना, इसकी जो बहू है वो सुबह से 9 बजे घर से जाती है और रात को 8 बजे घर पर आती है, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में टीचर है और प्राइवेट कोचिंग भी लेती है। जो बहू है वो टीचर है। तो इसका कंसर्न ये था कि हस्बैंड थे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वैसे मैं पहले से ही अचार बनाती हूँ क्योंकि उसे पसंद है कुछ करना। पर लड़का बहुत भोला है, बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा है, और लड़के को sciatica का प्रॉब्लम आपकी दवा से अच्छा हुआ, वरना कितने दिन तक दुकान बंद करना पड़ता था। ये उसका कंसर्न है, बस उसका ही टेंशन रहता है उसको, बिजनेस का। और खुद पे ध्यान नहीं दे पाती है। उसको ये समझ में आता है कि अभी मैं खुद पे ध्यान देना चाहिए, तो जॉइंट पेन वगैरह जो एक्सरसाइज करना चाहिए, अभी नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि अभी जो लड़का अभी घूम फिर चल नहीं सकता ज्यादा, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। और बहू सुबह जाती है तो शाम तक नहीं आती, तो उसको भी कुछ बोल नहीं सकती। इसका कंसर्न ऐसा था। वो भी काम करती है। बोलिए। हेलो, सेपिया कौन बोला? हेलो। क्यों सेपिया, क्यों कॉक्यूलस, वो भी बताइए। सेपिया, रेस्ट कैनॉट टिल things are not in proper place, dancing for family and anxiety children, इसके लिए। इसको सिर्फ बच्चे की केयर है और क्या है? और ये जो पापड़ और अचार बनाती ना, पहले से ही बनाती है वो, अभी नहीं। जब तक उसके हस्बैंड थे तब तब से ही वो बनाती। और रिसेंटली 6 मंथ्स पहले उसके हस्बैंड गए, तो तब से उसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। कॉकलिस क्यों लगा?
आशु? मैडम ये तो केयरफुल ऑफ केयर्स अदर्स अबाउट है। और या हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा उसका था कि मैडम रुब्रिक तो मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ऐसे फीलिंग वाइज बता रहा हूँ मैं कि वो फिर भी फीलिंग। देखो दूसरे अपना अपना ध्यान ना रखते हुए दूसरे का ध्यान रख रही है अभी भी, दूसरों की केयरिंग में है अभी भी, तो कॉकरोच इसलिए लग रही है। दूसरों का ध्यान भी दे रही है, लेकिन उसे लगता है कि मुझे खुद पे ध्यान देना चाहिए, अभी नहीं, नहीं दे हाँ, पा रही हूँ, लेकिन फिर देना भी नहीं चाहिए। दे पा रही, हाँ दूसरों के लिए कर रही है अभी भी। हाँ। और ये तो है कि ये केयरिंग लेडी है। खुद का ख्याल न करके दूसरों का ख्याल करना इज कॉक्यूलस। या बट ये यहाँ पे ये उसको बोल के दिखा रही है हमें कि हम मुझे खुद पे ध्यान देना चाहिए था, अभी नहीं हो रहा है। जो केयर करता है वो बोल के नहीं दिखाता, वो करता है, एक्शन रहती है उसकी। एंड ही सो वाइल टॉकिंग, उतना घुल मिल के बोलती थी ना मुझसे, फर्स्ट टाइम ही बोल रही थी कि उसने मुझे चार चार पांच बार बताया कि आप मेरे घर पे आ जाओ मैडम, मैं आपको अच्छा सा खाना खिलाऊंगी, आप पहले आप मेरे घर पे आ जाओ। ये उसका कंसर्न था, दवा साथ में लेके आ जाओ। मुझे एक बात बताओ कि ये पहले से ही जो पापड़ और बनाना था ना, वो क्यों चालू किया उसने? ये बिजनेस टॉक है क्या मैडम, फॉस्फोरस वाला? आप बताइए, बिजनेस टॉक है या कुछ और है, क्या है? लेडी कैसी है? Activity desires, ma'am. एक्टिविटी डिजायर्स में है। मैम कितने दिन दुकान बंद करके बैठे, एंजाइटी बिजनेस भी हो सकता है ना। और ये अपने पे ध्यान नहीं दे रही, तो इसने अपने लिए तो आंखें बंद कर रखी है अपनी। तो इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज्ड। और केयरिंग तो है। तो एक थॉट सीपिया का ही लगा। हम्म। सेपिया को एंजाइटी, चिल्ड्रन ज्यादा रहता है यहाँ पे, इस लड़की को क्या ज्यादा टेंशन है उसको? बिजनेस का मैम। बिजनेस का ज्यादा है, क्योंकि उसने जो अचार बनाना चालू किया जब हस्बैंड उसके बीमार थे मरने से पहले, तो उसको हॉस्पिटलाइज वगैरह किया था, तो खर्चा वहां पे ज्यादा हुआ था। तो उसने उससे पहले ही वो चालू कर दिया था काम, बिजनेस डाउन जा रहा है तो। हेलो? और आर्सेनिक क्यों लगा किसी को? एंजाइटी मनी मैटर। हेलो। या हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैम मुझे ऐसा लगता है ये ब्रायोनिक केस हो सकता है, क्योंकि एंजाइटी अबाउट बिजनेस इज स्ट्रांग एंड एज पर हर एज न्यू जॉइंट्स मे बी ऑस्टियोआर्थराइटिस। Yeah, and she is very rigid about her business. So Brian patient is more about rigid about financial duties or whatever we say. So I think she's Brionia.
because still she is doing her financial works, and she is more concerned about financial. So maybe there is dryness in her eye, in her knee joints, and also at this age. सर we don't have to think over the maybe, because हमें मालूम नहीं कंफर्म क्या है, जो अभी कंफर्म है सामने उस पर हमें फोकस करके देना है मेडिसिन. Yeah, We can't say anything ना about what she thinks about anything. yeah, जो उसने नैरेट किया है उसके ऊपर ही हमें देना है, तो वो हम मिस हो जाएंगे, मिसगाइड हो जाएंगे और गलत हो जाएगी. yeah. जो प्रेजेंट जो दिख रहा है उस पे हमें ध्यान देना है. एंजाइटी अबाउट फ्यूचर भी है और एंजाइटी अबाउट मनी मैटर भी है. हाँ, ये तीनों भी ब्रायोनिया कवर करता है. अच्छा, ओके. ओके, उसका हाउ कैसा है? ये लेडी कैसे है देखो, ये तो बिजनेस के बारे में सोचती भी है और बोलती कैसे, कितना मुझसे अफेक्शनेटली बोल रही है ना. अफेबिलिटी और उसका दूसरा जो डीडी क्या रहता है? अफेक्शनेट. ओके, और ये जो फोन पे बोल रही थी ना, उसकी एनर्जी लेवल एट सर्टेन मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि मुझसे भी ज्यादा उसकी एनर्जी लेवल हाई, इतना वो अच्छे से बात कर रही थी. हेलो, तो मैं अभी डिस्क्लोज कर दूं विदाउट वेस्टिंग द टाइम? या इट्स 10. या सोशियबिलिटी ये रुब्रिक मैंने लिया था कल ही, मानसी मैम ने पढ़ाया सभी को. आप ध्यान रखें कि नहीं, कम्युनिकेटिव और वाइवेशियस कॉम्बिनेशन जो है वो सोशियबिलिटी रहती है. तो मैंने रुब्रिक्स लिया था सोशियबिलिटी, इंडिपेंडेंट, और उसका मेन जो एलिमेंट्स था, उसके हस्बैंड के जाने के बाद में तकलीफ चालू हुई उसको, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस. एंड फोर्थ रुब्रिक इज एंजाइटी बिजनेस अबाउट, उसको बिजनेस की ज्यादा टेंशन है, लड़के का तो है ही है, उससे भी ज्यादा टेंशन उसको बिजनेस का है. तो ये लेडी भी सल्फर है, सल्फर से ही उसे अच्छा लगा. यहाँ पे जो सासू माँ है सल्फर की, जो फर्स्ट केस में हमने देखा जो बहू को कोस रही है, ये लेडी जो है ना बहू की भी केयर कर रही है. दिस इज अफेक्शनेट. यहाँ सल्फर अफेक्शनेट भी है और हिपोक्राइट भी है, लेकिन कौन से केस में क्या प्रेजेंट मॉर्बिडली हो रहा है उसको हमें पकड़ना है. एग्जैक्ट. प्रोमिनेंटली जो है PQRS, वही पे हमें फोकस करना है और वही रुब्रिक लेके हमें आगे जाना है. समझ में आया? हेलो. यस मैम. यस मैम. ओके, अभी केस नंबर 4 पे जाएंगे. ये लेडी जो है 46 इयर्स की है, हाइपोथायराइडिज्म उसको सिंस 5 इयर्स है, और थायराइड की टैबलेट उसे ऑलरेडी चालू है. इसकी जो डॉटर है उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसका अभी डिवोर्स का केस चालू है. तो यहाँ पे ये जो लेडी का जो वर्जन था ना, इसने क्या किया, उसका बिजनेस जब घाटे में जा रहा था तो उसने जल्दी से लड़की की शादी कर दी. और उसके बाद में अभी जब दामाद अच्छा नहीं है और ससुराल वाले अच्छे नहीं निकले, तो उसने डिलीवरी को जब लड़की आई तो उसको भेजा ही नहीं, वो लेके नहीं जा रहे थे. और जो उसका बेटा था उसको उसने 1 साल तक रखा, उसका सब कुछ किया,
लेकिन उसके 1 साल के बाद उसने क्या किया कि अभी ये हमारा बच्चा नहीं है। उसका कंसर्न क्या था कि उसका जो दामाद है उसके पास उसको भेज देते, उसको वहां पे फिर से भेज दिया। और अभी लड़की के बारे में क्या बोलती है कि अभी जो लड़की है कमाती है, खुद पैसे कमाती है और अच्छी से रहती है, तो वैसे उसकी जो लड़की के तकदीर में जो होगा वो हो जाएगा, ऐसे उसका कंसर्न है। अभी वो केयर फ्री हो गई है कि अभी उतना सोचती नहीं है। क्या कैसी लगी आपको लड़ी ये? प्रैक्टिकल थिंकिंग वाली। हम्म। और इमोशंस। क्लैरिटी ऑफ माइंड ले सकते हैं मैम। हर बात सोच समझ के बिजनेस घाटे में जाने लगा, उसके पहले ही बेटी की शादी कर दी। दामाद अच्छा नहीं था तो बेटी डिलीवरी को आई तो उसको भेजा ही वो नहीं, फिर वहां बच्चे को गलत हुआ भेज ना, क्लैरिटी ऑफ माइंड अगर रहता उसका मालूम पड़ता ना कि दामाद कैसा है, उससे पहले उसको मालूम पड़ता। मैम ऐसे लग हेलो। रहा है ये लेडी ब्रेन से नहीं यानी दिल से नहीं दिमाग से सोचती है सिर्फ बस। हाँ, ज्यादा क्या करती है, दिमाग से सोचती है। इमोशंस प्री डोमिनेंट बाय इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं। इंटेलेक्चुअल इमोशंस प्रीडोमिनेंट बाय इंटेलेक्चुअल में पेशेंट क्या करता है, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता है। हम्म। यहाँ पे ये क्या करी, वैसा कुछ नहीं करी। नहीं, क्योंकि यहाँ वो ज्यादा अपना माइंड दिमाग से काम ले रही है ना, हाँ, माइंड इमोशंस को माइंड साइड में रख दिमाग के। से काम ले रही है, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल कहाँ पे किया उसने? कौन से इमोशंस है जिसको उसने कंट्रोल किया, नहीं, प्रीडोमिनेट उसको इमोशंस कहाँ को पे प्री किया? डोमिनेंट किया उसने, इमोशंस को साइड में रख दिया। हाँ ना, प्री लेकिन डोमिनेट कौन से करके। इमोशंस को? यहाँ पे उसको इमोशंस ही नहीं है सर। कहाँ पे इमोशंस दिख रहे हैं आपको? उसने पहले लड़की के बारे में सोचा। नहीं। हेलो हाँ, बोलिए। मैम, यहाँ इमोशंस के बारे में मैडम एक ड्राइनेस दिखी यहाँ पे। छोटे बच्चे को हाँ, भी अपनी बेटी से उसने दूर कर दिया। कि हाँ, मतलब हर जगह वो प्रैक्टिकल थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन सब जगह उसका ड्राइनेस दिख रहा है यहाँ पे। कि मुझे छोटे बच्चे को भी अपनी माँ से दूर कर दिया। प्रैक्टिकली बिजनेस जितना उसको मतलब बिजनेस या फिर मनी के बारे में सोच रहे, खुद भी कुछ खुद पे नहीं ले रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नहीं ले हाँ। रहे। सबको अपनी अपनी ये प्रैक्टिकली जिसने खुद ने अपने अपना अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसे खुद वहां से साइड हो रही है, ऐसा लगा क्या यहाँ ये पे। माँ की तरह सोच रही है? नहीं सोच रही है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं सोच रही। और जो वो उसके लिए क्या बोलती है अभी, जो उसके नसीब में वो हो जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं? अभी मैंने कुछ गलत नहीं किया, ऐसे उसे लगता है। या यस मैम। और और उसने शादी जल्दी क्यों किया? क्यों बिजनेस घाटा मिल गया? यस मैम। पुअर फीलिंग है ब्रायनिया का, लेकिन ये ब्रायनिया नहीं है। ठीक है, ब्रायनिया ड्राइनेस रहता है, लेकिन ब्रायनिया ह्यूमैनिटी में भी है। ऐसे ऐसे नहीं बिहेव करेगा। ह्यूमिलिटी में है ब्रायनिया। तो ये कौन है? और इसका लास्ट वर्जन क्या था कि इसको अभी थायराइड की गोली चालू है जॉइंट पेन के लिए। हेलो कुछ कुछ है तो दिखाओ, दे दो। हाँ, बोलिए। मैम, ब्रायोनिया ड्राइनेस में और सेकंड क्या बताया आपने? ह्यूमिलिटी रूब्रिक में ब्रायनिया है मेरे को। ह्यूमिलेटेड। हेलो। जी जी। ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी में। ह्यूमिलिटी। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। इसको एक रूब्रिक मैंने लिया है। और इसके लास्ट वर्जन जो है वो कैसे लगा आपको? कि अभी मेरी थायराइड की गोली तो चालू है, आप जॉइंट पेन के लिए कुछ है तो दे दो। इंडिफरेंस मैम।
श्रीकिंग लगा मैडम। Indifference, ma'am. Indifference about Shrinking help for. इंडिफरेंस क्यों लगा सर आपको? पेन के बारे में गोली ये- दे दो और थायराइड जो जो है हाँ, मैम थायराइड की गोली चालू है उसे, उससे उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जॉइंट से उसको ज्यादा हाँ, इफेक्ट हो रही है। तकलीफ सो हो रही है। यहाँ पे तकलीफ हो रही है, ऐसा लगा यहाँ पे। सो इंडिफरेंस टू रिकवरी और आर्सेनिक जैसा फील आया सर मैम यहाँ पे। नहीं, ये मुझे श्रीकिंग ही लगा। ओके इंडिफरेंस कहाँ पे है? उसको बताते वक्त उसने दोनों कंप्लेंट्स बताए हमें, जॉइंट पेन भी है, स्वेलिंग है, थायराइड की गोली भी चालू है, वो भी उसे कम करना ही है, लेकिन वो दिखाती कैसे है कि मुझे ऑलरेडी चालू है, कुछ है तो दे दो। अच्छा ओके। पहले कंप्लेंट्स ही नहीं बताती थी ना, इंडिफरेंस रहता तो। ये मैंने स्पीकिंग हेल्प फॉर लिया नंबर 4 का, और इसका जो मेन रुब्रिक था वो था सेंसिटिवनेस, वांट ऑफ सेंसिटिवनेस, चिल डोलिंग। ये रुब्रिक मैंने इसके लिए लिया क्योंकि उसके सेंसेस ही लॉस हो गए थे, जैसे चिल कंडीशन आ गई, डाउन आ गया, तो उसने सब कुछ प्रैक्टिकल सोचना ही चालू किया ना। तो मैंने रुब्रिक लिए थे डिलीजन पुअर, मानसी रुब्रिक प्रेजेंट का। डिलीजन पुअर ही सेंसिटिव, सेंसिटिवनेस, वांट ऑफ चिल डोरी एंड श्रीकिंग हेल्प फॉर, ये स्ट्रैमोनियम है। हेलो, यस। ये जो रुब्रिक है हम बहुत बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के कंफ्यूजन होगा कि इमोशंस प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट। इमोशंस प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट में पेशेंट खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है। यहाँ पे ये जो लेडी है, किसी के बारे में भी कोई इमोशंस ही नहीं है इसे, सिर्फ प्रैक्टिकल सोच रही है। सेंसिटिव। सेंसिटिवनेस जो है वो लॉस हो गया उसका, वांट में गया है, कम हो गई है सेंसिटिवनेस उसकी चिल की वजह से। या इसमें हम देखें तो सेपिया, फास्फोरस ये भी है, आर्सेनिक भी है, लेकिन इसका जो पुअर कंडीशन था कि उसको बिजनेस लॉस हो गया, अभी हालात खराब है, उसके लिए उसने उस लड़की की शादी कर दी। तो ये स्ट्रामोनियम था, उसको स्ट्रामोनियम 1 mg दिया था। उसके बाद में थायराइड लेवल भी नॉर्मल आ गए उसके। हेलो, यस पद्मा, वेरी नाइस। या या इस रूब्रिक को हम क्लिनिक में नाउअडेज ज्यादातर यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी सभी लोग जो है ना प्रैक्टिकल बहुत सोच रहे हैं। इमोशंस कम होते जा रहे हैं आजकल की जनरेशन में, प्रैक्टिकल थिंकिंग के लिए ये रूब्रिक भी अच्छा है। हेलो, अभी मैं आपको ना एक थोड़ा कॉम्बिनेशन बता रही हूँ जो आप कॉमनली ले सकते हैं। तो फर्स्ट, व्हेन वी थिंक अबाउट द लेडीज इन द 40-50, जो मदर इन लॉज है उनके लिए जो कॉमन फैसेट मैंने अभी बताया, पहले ने उन्होंने बहुत डोमिनेशन सहन किया है, और अभी जो है बहू के साथ उनको यील्डिंग करना पड़ रहा है। रीजन में भी वो विलिंगली करेंगे या अनविलिंगली करेंगे। तो अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे, मानसिक कोणी रेपर्टरी दाखवते, हाँ, if we collect the rubrics elements from domination and yielding disposition. दिसतंय स्क्रीन? हाँ दिसते, रेपर्टरी चार्ट नाही दिसत. काय टाकायचं?
Elements from domination and yielding disposition. यस। तो कितने रेमेडीज आते हैं? 12। हाँ, 12 लोग आते हैं। अगर इस 12 लोगों में हमने इंडिपेंडेंट रुब्रिक ऐड किया तो वी गेट ओनली 2 रेमेडीज, ट्रिटिकम वल्गरिस एंड सेपिया। जो सास जो है कॉमनली अगर हम देखें इंडिपेंडेंट होती है, और जो डोमिनेशन पहले साइन की हुई अभी बहू के साथ यील्डिंग में है, अगर इंडिपेंडेंट हो वी डायरेक्टली गो टू द ट्रिटिकम वल्गरिस एंड सेपिया। अगर उसमें हमने डिल्यूजन पुअर ऐड किया तो ओनली सिंगल सेपिया। जो पहले डोमिनेशन सहन कर चुकी है, अभी यील्डिंग भी है, लेकिन कुछ खुद को पुअर समझती है, एक्शन नहीं ले पाती, तो वहां पे सिर्फ सेपिया आएगी, जो सांस सिर्फ सहन करती है। अगर उसमें हमने सर्वाइल ऐड किया, मानसिक रुब्रिक कार्ड पर पहिले 2 रुब्रिक ठेवायचे आणि बाकीचे जे सांगते तेवढंच फक्त ऍड कर. कुठले नकोय? एलिमेंट्स फ्रॉम डॉमिनेशन, लीडिंग डिस्पोजिशन प्लस सर्वाइव, बाकीचे कार्ड. सर्वाइव लेडीज जो घर का काम करने में बहू को मदद करती है. सर, तो उसमें लाइकोपोडियम, स्टैफिसेग्रिया, सिलिशिया मिलते हैं, और उसके साथ में पल्सेटिला है, लेकिन पल्सेटिला डोमिनेशन फील नहीं करती. बट नाउ अभी जो सासुमास है उसमें से बहुत सारे पल्सेटिला भी होते हैं. एक कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, जो बहू को मदद करने वाली सासुमा होती है उसमें जो जो डोमिनेशन खुद सहन किया और बहू को भी डोमिनेशन करती है, वो है लाइकोपोडियम और स्टैफिसेग्रिया, सिलिशिया. Okay, we'll go to the next combination, hypocrisy. जो सासुमा हिपोक्रेट है और जो लीडिंग वाली भी है, तो उसमें आते हैं लाइकोपोडियम, इग्नेशिया, सिलिशिया एंड सेपिया. Hypocrisy and Elements from domination and yielding disposition with hypocrisy. You keep these two rubrics same. Elements from domination and yielding disposition. Just go on adding the other rubrics. इग्नेशिया, लाइकोपोडियम, ये जो है ना, डोमिनेशन पहले ही सहन कर चुकी होती है, फिर भी वो बहू को भी डोमिनेशन में रखती है बिकॉज ऑफ हिपोक्रेसी. सेपिया भी है उसमें. द एडेप्टेशन मेक चेंज, डोंट थिंक. कई सारे सेपियाज ऐसे रहते हैं जो पुअर फीलिंग में रहते हैं, वो कुछ नहीं करते, लेकिन जो हिपोक्रेट रहते हैं वो बहू को भी तकलीफ दे सकते हैं. या अभी हम देखते हैं जो कॉरलसम होते हैं बहू और सासुमा, जो झगड़ते रहते हैं हर बात पे बहू के साथ, कुछ हुआ तो we get more than all the 12 remedies are there. कॉरलसम, सभी लोग झगड़े झगड़े कर सकते हैं.
अगर हमने ऐड किया जेलेसी वुमन बिटवीन, जिसको बहू के साथ जेलेसी फील होती है, अगर बेटे ने बहू को कुछ लाया तो उसको भी तकलीफ होती है, तो उनमें से ज्यादातर प्रोमिनेंटली आते हैं नेट्रमोर और सेपिया। बहुत बार पेशेंट्स बताते हैं ना केस टेकिंग में कि लड़का मुझे ध्यान नहीं देता, उसको सब ला के देता है, मुझे कुछ सुनता भी पूछता भी नहीं, तो वी कैन गो डायरेक्टली विद these रिपोर्ट्स। एंड नेक्स्ट वन इज केस फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स में सेपिया और पल्सेटिल आइए। जो सासू माँ घर के काम अगर बहू नहीं करे तो बहुत गुस्सा करती है, घर के काम करके वो बहू काम को जाना, जिनका कंसर्न ये रहता है, उसमें से कॉमनली आते हैं सेपिया और पल्सेटिव। यस पद्मा। Yeah. Now we are going to the good characters of the mother-in-laws. That mother-in-laws with harmony desire. Harmony desire वाले देखेंगे अभी. If we club the three rubrics, elements from domination, leading disposition, and harmony desire form, then we get only 4 remedies: Podophyllum, Magmur, Carcinosin, and Netromor. बहुत सारे सासू माँ होते ज्यादा बोलते नहीं, क्योंकि झगड़े होते घर में, अच्छा नहीं रहता, माहौल अच्छा रहना चाहिए, उनका कंसर्न यही रहता है। वहां पे हम ये 4 रेमेडीज के बारे में सोच सकते हैं: पोडोफाइलम, मैगमूर, कार्सिनोसिन एंड नेट्रोमोर। अभी हम देखेंगे जो हार्मनी चाहती है, लेकिन उसके साथ में जो सासू माँ जो झगड़े होने के बाद में प्लीजिंग में जाते हो, जो बहू के बारे में अच्छा सोचते हैं, प्लीजिंग डिजायर वी ऐड, खुद होके बोलती है बहू के साथ फिर बाद में प्लीज करती है। So we get only 3 remedies: Thuja, Aurum muriaticum, and Carcinosin. Thuja is there in pleasing desire. Aurum muriaticum, nitricum, and Carcinosin. हेलो, हाँ बंद करूँ स्क्रीन शेयरिंग। हाँ. So here are the 10 combinations that we get easily in the OPD. Thank you. Thank you, everyone. थैंक यू पद्मा। Thank you, ma'am. Very nice Thank you, ma'am. explanation Thank you. about Thank the you. Very relation. nice cases. Good cases. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, everyone. ma'am. Thank you. मंजिरी। हो मैम। ओ मैम, जी सर। प्रभु कहाँ? आज प्रभु नहीं दिखे। जी सर नहीं है शायद। चल बेटा, तो आज पिता हैं साथ, सर नहीं है तो पिता साथ खड़े। जी सर। ओके, वेलकम सर। कैसी है बेटा? ठीक है। देख मैं नीचे बैठा, तेरा पीछे बैठा सुन रहा हूँ, देख के। अच्छा, आसन लगा के बैठ गया। ओके सर। हाँ भाई, यूर गुड टीचर मैम, राइट? एक अथॉरिटेटिव वे से तुम बोली, और बड़ा अच्छा है। इनको बेटा ग्राउंडेड रखो। क्या हो रहा है? एवरीबडी हैज अ इमेज ऑफ अ रूब्रिक इन द माइंड, राइट? Yeah. और जो प्योरिटी तुम सिखा रही हो कि गुड,
है ना। मैं भी तुम टीचर रही हो, आई डोंट नो व्हाट्स योर फोर्टेस, मैं माफी चाहूंगा, मैं और हम्बल होना चाहूंगा बेटा, है ना? हमने दबाना नहीं है। सी आई वांट सी, इसको इसी को दिखाओ मुझे, कहाँ है लड़की, क्या नाम है इसका जिसने लिया है, सॉरी, पद्मश्री है? पद्मा यस सर। बेटा दिख नहीं रही ना, दिख मान सी रही है। नहीं, पद्मा है सर वो। अरे मुझे तू दिख रही है, मुझे पद्मा नहीं दिख रही है स्क्रीन पे। उसको ये कीजिए आप पे, मैं दिख स्क्रीन रहा हूँ? वरती दिसत नाही मला. साइड पे कीजिए उसको, राइट साइड पे थोड़ा सा ये कीजिए, स्वाइप कीजिए। हाँ ठीक है बेटा। और इस कुछ बच्चों ने पूछा, मैं अच्छा था तुम्हारा सेकंड केस जिसपे तुमने सल्फर दिया है ना, कुछ कुछ कहो बात, यू हैव kept them very practical to the boundaries, right? Don't go here and there, just focus on that present which is given to you, right? Very good, है ना। तुमने सेकंड वाले का मुझे हल्का सा कहा था ना कि उसको थोड़ा सा गोल्ड गोल्ड के डिजाइन का बड़ा अच्छा दिख रहा है, उसके पास गोल्ड भी है, जो वेल दिखा रही थी वो, राइट। और अपना बच्चा क्या हाँ था, सर, मुझे उस बच्चे, वो बच्चा कौन था वो जिसने पूछा आपसे कि वो मुंह नहीं छोड़ पा रही, उसने आपकी बात मान ली बेटा, आपने जो एक्सप्लेनेशन ली ही एक्सेप्टेड दैट, पर अंदर से वो, उससे पूछो कन्विंस है एक बार प्लीज, है ना, माफी चाहूंगा, बड़ी अच्छी जगह ले जाना चाह रहा हूँ मैं। वो कहाँ है वो बच्चा, उसने क्या नाम था उसका ओके जिसने कहा कि मुंह नहीं छोड़ पा रही, है ना, वो बच्चे का, अपने लड़के का मुंह नहीं छोड़ पा रही, ये क्या करेक्टर हाँ लड़के के लिए बात है. है ना। आप भी एग्री तो करती हो ना, मुंह नहीं छोड़ पाना उसकी, उसने बहू को कर दिया, राइट। इसको ध्यान से सोचना भाई, एक तरफ फाइनरी की इच्छा अच्छी लगती है सल्फर को, फाइनरी डिजायर फॉर, और रैग सीम ब्यूटीफुल, अपना फटा हुआ को उसको भी छोड़ यस थोड़ी ना रही है। ध्यान से जाना बेटा, वेल्थ उसके नहीं. पास है। अच्छा सर. मेरी बात समझ पाएगी, मैं बहुत यस सर. दूर तक सोचने को, और एक सेल्फिशनेस है, सल्फर एक सेल्फिश है, क्योंकि उसको लगा बच्चा तो निकम्मा है, कुछ करेगा नहीं, बहू खड़ी हो गई तो मेरे बेटे का घर संवर जाएगा, इसी ये एक अलग तरह का सेल्फ, हाँ समझ रही बेटा। और उसको तो लगा संवार नहीं सकती, तो अपना रैग सुंदर लग रहा है, रैग सीम्स ब्यूटीफुल, फाइनरी डिजायर फॉर, तेरे डिजाइन नया देखती थी तो सारी है ना, तेरे उसका अट्रैक्शन जाती थी फाइनरी की ओर, ब्यूटीफुल थिंग यर्निंग फॉर, सोना उसके पास है, यस. वेल्थ उसके पास है, तो अपना तो रैग भी सोना हो गया, और उसके पीछे स्वार्थ खड़ा है सेल्फिशनेस का, जिसमें अगर बहू खड़ी हो गई तो उसके बेटे का घर संवर जाएगा। चलेगा पद्मा, मुझे पता नहीं बेटा, थोड़ी यस सर. दूर ले गया मैं, माफी चाहूंगा बेटा, है ना। नहीं सर. कैसा लग रहा है तेरे को, कुछ हाँ समझ, सेल्फिश. अब सेल्फिशनेस डाली उसके बेसिक, यस सर. एक राइट. सेल्फ है, और अपना रैग सुंदर दिख रहा है। उस कौन थे वो भाई साहब जो बोल रहे थे यार, उनको बताओ ना, बच्चा, एक बच्चे का उसको ना बेटा, किसी की जिज्ञासा को मारना है, और इनको कहो कि यार ग्राउंडेड रहेंगे। हर आदमी, जैसे तुमने बोला कि ना इंटरनेट का यूज कर रही है, तो उसने कहा प्रेडोमिनेट, तो इनको रूब्रिक याद है, फटाफट ये उसमें फिट इन करने की कोशिश करते हैं, कॉन्टेक्स्ट की आत्मा को समझे बिना, वो गलती हो जाएगी इनसे, ये है ना, हमें इनको, हेलो जी यस सर। सर. बेटा, अगर नहीं आप एग्री करोगी तो आपका अधिकार है, आज आपका दिन है और आप बड़ी स्ट्रांग बैठी हैं, राइट। द कमांड यू हैव इज अ वंडरफुल टीचर देयर, देयर नीड टू बी, है ना, हाँ। और वो जो ह्यूमिलिटी उसको समझानी थी ब्रानिया की, ब्रानिया वाला बड़ा प्यार से कहता है, सर आप एक तो बच्चे हैं, अरे सर, है ना, क्योंकि बिजनेस से दिखता है तो बड़ा बड़ा वो प्यार से बोलता है। आप किसी बिजनेसमैन से मिलिए, वो आपसे ना नाराजगी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है बिजनेस मिलना है, तो ह्यूमिलिटी होती है, वेरी गुड। एक तरफ ड्राइनेस सिखाते हैं, दूसरी तरफ ह्यूमिलिटी है। और कौन है भाई, किस, ठीक है, जी सर, सॉरी थैंक पद्माश्री, पद्माश्री नाराज तो नहीं है बेटा। पद्मा। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा. आप जो कर रहे थे रोज आए. आप समझ रहे हैं ना, एक सेल्फिशनेस, छुपी सेल्फिशनेस है, वो तेरी हिपोक्रेसी को दिखाएगी कि केयर तो बच्चे की हो रही है, दिखाया जा रहा है बहू की केयर हो रही है, क्योंकि अब तू कुछ बन गई तो देख तेरा संवर जाएगा, तेरे बच्चे संवर जाएंगे, उसमें उसका अपना खानदान संवर रहा है ना। हिपोक्रेसी में क्या है ना, कर कुछ रहे, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अगर बहू को डांटना है तो बेटी को डांट दो, सुनाना बहू को है, यू अंडरस्टैंड। हम्म। डायरेक्ट. इट्स ए ट्रिकी वे, राइट। भाई तेरे से उठता नहीं, अब बहू को कहेंगे तो चप्पल छोड़ गई
तो वो तो कहेगी यार तेरा तेरा पति उसे कहेगी कि तेरा आदमी तो, है ना, मेरी चप्पल भी देखता है कि मैं नहाने के बाद छोड़ के सुबह ऑफिस भागना होता है। तो वो अपनी बेटी को समझाएंगे, बेटा जी ऐसा है, इसको यार अपनी चक्का करो, मैं निकल रहा था तो पैर फिसल गया। बेटी को कहेंगे, बहू को नहीं। जी मराठी हाँ में भी सर बोलते हैं ऐसा, लेकी हाँ बोले सोने लगे। सुना लगे हाँ सोना लगे। तो बेटा ये समझ रहे हो ना, ये क्या होता है, उनको लगता है यार घर चलाना है, बैलेंस भी रखना है। अब अपना नालायक है यार, उसको क्या कहेंगे यार, इसको नालायक कहेंगे तो बहू घर में कहाँ इज्जत होगी, किसकी क्या करेगी। तो रैक सीम ब्यूटीफुल चलेगा, समझ रही बात। और यस फाइनली डिजायर फॉर सेल्फिशनेस, अब इसमें सारा गेम आ जाएगा, तेरी हिपोक्रेसी सेट हो जाएगी। अदरवाइज हिपोक्रेसी समझाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो कहती तो है सबसे प्यार करती है, लेकिन बहू और बेटे में डिफरेंस करती है। समझ में आ गई वो डिफरेंस क्यों करती है, इसका जवाब तेरे को मैंने दे दिया। अपना रैक सुंदर दिखता है, डिजायर यस फाइनली की है, डिजायर किसकी है कि यार घर सुंदर हो जाए, इसका घर भी समझ जाए। फाइनली क्या है, द ब्यूटीफुल थिंग्स, कलेक्शन, बाहर की चीजें फाइनली। चलेगा पद्मा, मुझे नहीं पता मैं बेटा कुछ देने योग्य हूँ कि नहीं, पर मेरा मन किया मैं बोल दिया। नहीं सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। चला ठीक है। और तू बड़ी पिसाई जा रही, बड़ी खतरनाक टीचर है, मुझे बड़ा डर लगेगा तेरी क्लास में बैठने से। हाँ सर, नहीं सर, आपसे बट दैट वाज सीखे प्रिसाइज, बहुत अच्छा लगा ये तुमने। इनको एक वर्किंग टेबल दे दिया। ऐसे ही मैं देखे आया करता था इनको जब मैंने परसिवियरेंस पढ़ाई थी, कि हर आदमी परसिवियर क्यों करता है, राइट। और आज से कम 30 साल पुरानी, कि व्हाट इज हिज नीड। इसी तरह थैंक यू। वो अच्छे से नहीं मिलवाया भी, वो कौन था जिसने सवाल पूछा था कि उसको उसने कैसे मान लिया कि तेरी बात से एग्री कर गया। मुझे उसने उसको जगह वो ठीक जा रहा था कि ये पुत्र मोह है। अब पुत्र मोह को कहाँ डालोगे, वो समझाना मुश्किल था। है ना, है ना? कौन था पुत्र मोह में, धृतराष्ट्र। हाँ अंधा। ठीक है ना, बस 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 बस। तो थैंक यू वेरी मच बेटा। चलो आज सुबह कीर्तन हो गया, मैं सोचा था रोज पढ़ा दिया करो मुझे भी थोड़ा थोड़ा, तो मेरे को पुराना सब याद आ जाएगा, देख, है ना। हाँ सर, व्हाट रोज इज आ रही थी आप। इग्निशन माइंड का मीनिंग क्या था, इट इग्नाइट्स योर माइंड, यू सी, बी हम्बल एंड यू लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन। इतना मस्ती आती है बच्चे जो मुझे छोटे छोटे सिखाते हैं, और वो कितने प्यार से सिखाते हैं। डू यू नो दादू, यस आई नो, आई डोंट नो मैम, मैं उसको कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। द एली, हु इज एली, मैं आई डोंट नो हु इज एली। द एलिफेंट, दादू यू डोंट नो दैट। ओ मैं कहा बेटा मुझे एलिफेंट ही पढ़ाया गया था, एली नहीं पढ़ाया गया था। सो आई लर्न फ्रॉम द स्मॉल चिल्ड्रन, राइट। सो थैंक यू पद्मा फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सर। राइट। इट्स अ गुड जर्नी हियर, मुझे लगा, एंड आई अप्रिशिएट। थोड़ा सा और साफ हो जाए बेटा, बहुत कड़क टीचर है तू, मैं डर जाऊंगा। हाँ सर, नहीं सर। है ना, ओके, थैंक यू हर एक सर, का अपना थैंक यू करेक्टर सर, है ना, बट दैट्स फ्रॉम योर, है ना। चलो ऑलराइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, थैंक यू sir. सर। मंजरी। This is bonus lecture for us, sir. Thank you for coming. आप ऐसे ही आते जाओ सर। कौन बोल रहा है अभी, समझ नहीं आया कौन बोला ये। सर डॉक्टर वीडियो मंजीरी। ऑन करना, मंजू वीडियो ऑन कर। हाँ मेरे को बेटा दिखा ही कोई नहीं, कोई ना। कितने बच्चे हैं देख मेरे, है ना, मुझे पता भी नहीं है ना। सर बेटा डॉक्टर नाराज मंजीरी। मत होना, देख ऐसा है ना, कई बार माँ बाप ज्यादा बोल जाते हैं बूढ़े हो जाए तो, राइट। सो प्लीज फॉरगिव अस, है ना, इतना नहीं सर, सहना पड़ेगा नो बेटा, सर, नहीं है सर, ना, हमारे नहीं लिए सर, तो वी आर ऑलवेज वेलकमिंग यू। यस है ना, सर। ठीक है। आई होप दिस विल कैरी यू समवेयर, दिस विल गिव यू कनेक्ट, राइट। है ना, अब ये पीछे, और इसने बहुत ग्राउंडेड रखा है। द बेस्ट पार्ट ऑफ चीज, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, बट शी इज टीचिंग यू इज से ग्राउंडेड। वो बाद में मेटाफोर लगा देना, हवा में बाद में उड़ लेना। इफ यू आर ग्राउंडेड, यू आर मोर टुवर्ड द, डॉक्टर सहगल ने जब हमें दिया था, क्या दिया था, हिट द राइट टारगेट। तो उनको लगा वो चिड़िया नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ आंख दिखाई देनी चाहिए, देन यू रीच द राइट टारगेट। दैट वाज हिज एरो। उनका उसका नाम ही रखा था, हिट द राइट टारगेट। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड दिस। थैंक यू, है ना पद्मा, दैट वाज नाइस एंड मजरी, थैंक यू। ऑलराइट, अबाउट यू, ऑल द वुमेन्स, ब्यूटीफुल वुमेन्स, थैंक नो यू। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बंद कहाँ से करूं बेटा, तो थैंक यू में तो फंसा देती है। मैं वापस, मैं भी अभिमन्यु हूँ, घुसना आता निकलना बाहर नहीं आता। बस नहीं। आज तो सच में, यस मंजरी। आज तो सच में वुमेन्स डे सेलिब्रेट हो गया सर आए तो। थैंक यू पद्मा मैम, बहुत अच्छा लेक्चर था।
आपका सल्फर और आपका सभी बहुत ही अच्छा सब था, और सर ने जो एक्सप्लेनेशन दिया उससे तो 4 चांद लग गए। थैंक यू पद्मा मैम, थैंक यू मानसी मैम Yeah. फॉर अरेंजिंग ऑल दिस। Thank you, Liaquat sir. Thank you. थैंक यू। Thank you, Sanjay Sehgal sir. And thank you, Padma. Yes, it was really nice session. Thank you so much. And thank you everyone for joining. Keep joining. अभी और lectures आएंगे. So keep joining. Thank you all. Bye bye. Have a good day. Thank you.